Hello friends, I am Pradeep Yadav. I welcome you on my channel The Knowledge Adda. Today I am going to discuss how and where to use could have. इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम अपने सेंटेंस में could have कैसे यूज कर सकते हैं. At least I will give 30 example where I am going to use could have. बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे. फर्स्ट वन इज brief description about could have English. In English I will tell brief description about could have in English. Second, I will tell you brief description about could have in Hindi, and also I am going to give some example that is related to simple negative and interrogative sentences, and now example of could have in Hindi and both English, so you can easily understand where and how we have to use could have. So let's start. Now could have means सकता था, सकती थी, सकते थे. Means this is I have written this सकता था, सकती थी, सकते थे. Only understand. Now talking about definition, could have is used to talk about something that was or was not possible in the past. कहने का मतलब है कि हम could have को वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये चीज़ हो सकता था या नहीं हो सकता था. मैं दौड़ सकता था, मैं दौड़ नहीं सकता था. मीन्स जहाँ भी इस तरह की हम बातें करें, पास की बात कर रहे हैं, वहाँ हम कुड हैव यूज करते हैं. जैसे कि मैं दौड़ सकता था, आई कुड हैव रन. कुछ चीज़ें थी जो पास में पॉसिबल नहीं थी. जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, यू कुड हैव बॉट द चीपर जैकेट, इट लुक ग्रेट ऑन यू. मीन्स तुम सस्ती जैकेट खरीद सकते थे, ये तुम पे अच्छी लगती. मीन्स समथिंग वॉज प्लान इन पास्ट बट डिड नॉट हैपन. सेकेंड क्या हो सकता है, वी ऑल्सो यूज कुड हैव टू से डैट वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग बट वी डिड नॉट. मतलब हम कुछ करने के योग थे लेकिन हमने किया नहीं. वहाँ भी हम कुड हैव का यूज करते हैं. जैसे हम एग्जाम्पल से देख सकते हैं, I couldn't have done that to him. He is my best friend after all. मैं उसके साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि after all वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है. Means here you have to use could not have. Means we also use could have to say that कि we were capable. हम कुछ करने के काबिल थे लेकिन हमने किया नहीं. Could have is often used with a tone of criticism. समटाइम क्या होता है, जब हम क्रिटिसिज्म की बात करते हैं वहाँ भी हम कुड हैव को यूज करते हैं. बाय यूजिंग दिस एग्जांपल डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड. यू कुड हैव जस्ट बीन ऑनेस्ट विथ मी. तुम्हें मेरे साथ या तुम मेरे साथ ऑनेस्ट हो सकते थे. इट इज ऑल्सो यूज फॉर स्पेसिकुलेशन अबाउट थिंग दैट डिड नॉट हैपन. मीन्स आर यू आउट ऑफ योर माइंड, You could have crashed into the wall. क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम दीवार से टकरा सकते थे. मीन्स वी आर टॉकिंग समथिंग अबाउट स्पेसिकुलेशन. हम किसी को बोल रहे हैं कि अगर तुम ऐसा करते तो ऐसा हो सकता था. इन दैट केस आल्सो वी कैन यूज could have. Now talking about what is biggest difference between could and could have is that could shows a past ability. मैं दौड़ सका, मैं नहीं जा सका. While could shows only a possibility. मैं दौड़ सकता था. Now just look at two example. He could swim very fast before the accident. He could swim. वो बहुत तेज स्विम कर सकता था एक्सीडेंट के पहले. ही कुड हैव स्विम फास्टर. अगर उसके लेग में चोट नहीं लगी होती तो और ज़्यादा या और तेज वो तैर सकता था. मीन्स only there is a slight difference between could and could have. Could represent past ability while could have shows only past possibility. So these are some example where you can know where we have to use could have. Now we are talking about Hindi.
कुड हैव मीन्स सकता था, सकती थी, सकते थे, मीन्स सकती थी लेकिन काम नहीं किया गया। एंड सभी सब्जेक्ट के साथ हम कुड हैव का उपयोग करते हैं, चाहे आई, वी, ही, सी, समथिंग लाइक दैट। हियर दिस इज सेंटेंस फॉर्मेशन, subject plus could plus have, V3 means third form of the verb, then object. Now just look at some example, definitely you can understand. These are some example. First person, I could have eaten, मैं खा सकता था, हम लोग खा सकते थे, आप खा सकते थे, आप लोग खा सकते थे, means this is simple example. By reading this example, definitely you can understand कि where we have to use could have. Now simple sentences, मैं अंग्रेजी सीख सकता था, आई कुड हैव लर्नड इंग्लिश, हम लोग वहाँ रह सकते थे, वी कुड हैव लिव्ड देयर, आप तेज दौड़ सकते थे, यू कुड हैव रन फास्ट. तो दीज आर सम एग्जाम्पल विच इज बेस्ड ऑन सिंपल सेंटेंसेज. नाउ टॉकिंग अबाउट नेगेटिव सेंटेंसेज, दिस इज फॉर्मेट कि हाउ यू हैव टू यूज नेगेटिव. फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट कुड, देन यू हैव टू यूज नॉट प्लस हैव, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट. Here you can see some example. मैं अंग्रेजी नहीं सीख सकता था, I could not have learnt English. हम लोग वहाँ नहीं रह सकते थे, we could not have lived there. आप तेज नहीं दौड़ सकते थे, you could not have run fast. So these are some example of negative sentences. Now talking about interrogative sentences, there are two types of interrogative sentence. First one is when जब आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है, जैसे क्या मैं जा सकता था, क्या मैं खा सकता था, मीन्स अगर आपको, तो बेसिकली क्या है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि कैसे आपको यूज करना है. सबसे पहले कुड आएगा, सब्जेक्ट आएगा, अगर निगेटिव सेंटेंस है मतलब क्या मैं नहीं जा सकता था, देन नॉट प्लस हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट. जस्ट लुक एट सम एग्जांपल. क्या मैं अंग्रेजी सीख सकता था, कुड आई हैव लर्नड इंग्लिश, हम लोग वहाँ रह सकते थे, कुड वी लिव्ड देयर, क्या आप तेज दौड़ सकते थे. तो दीज आर सम एग्जांपल. Now second type of interrogative sentences, when, why, how plus could plus subject, then not, if there is a negative word, then plus have plus verb 3, then object. Just look at some example. मैं अंग्रेजी कैसे सीख सकता था, how could I have learned English, हम लोग वहाँ कब रह सकते थे, when could we have lived there. आप तेज क्यों दौड़ सकते थे, why could you have run fast. So these are some example. If you like this video, then please comment, share and also subscribe to my channel. So this is in this video, I think definitely by listening, by reading, definitely you can understand where we have to use could have. Thank you for watching this. Thank you.